स्टार्ट। यस, ये फैन फुल कर बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। Very good morning boys and girls. I welcome you all to yet another session of secondary practice where we take our discussion ahead with the sources of owned capital. In the last lecture we have completed the entire discussion about preference shares. Preference shares are those shares which enjoy preferential right over the equity shareholders. There are two preferential right which the preference shares enjoy over the equity shares. First preferential right is for the payment of the dividend. First preferential right is for the payment of the dividend, and second preferential right is regarding repayment of the capital, right? Before the payment of the dividend to the equity shareholder, dividend is paid to the preference shareholder. In the same manner, before the repayment of the capital of the equity shareholder, first repayment of the capital is done to the preference shareholder, right? Now, after understanding preference shares, now let's move on to understanding other type of share that is called as equity shares. Equity shares can be understood as purely an owned capital because it is a permanent source of capital. It is a permanent source of capital. चल मोमो किधर घूम रहा था? It is a permanent source of capital. It is a permanent source of capital. Yes, everyone. It is a permanent source of capital. आया ना? It is a permanent source of capital. इसका मतलब क्या है? Are they redeemable or non-redeemable? Redeemable or non-redeemable? They are non-redeemable. Redeemable कौन है? रिडीमेबल क्या होता है? जो हमेशा साथ निभाए, जो हमेशा साथ निभाए वो रिडीमेबल है ना, है ना? फॉरएवर साथ जो निभाए वो रिडीमेबल। अरे हाउ यार, जो हमेशा साथ निभाए वो रिडीमेबल नहीं? अच्छा चलो ठीक है। नॉन रिडीमेबल मतलब विच कैनॉट बी रीपेड। नॉन रिडीमेबल मीन्स विच नीड नॉट टू बी repaid and which will stay with the company throughout the lifetime of the company, throughout the lifetime of the company, right? Now when we talk about equity shares, there are no many types as compared to that of the preference shares. There are only two types: equity shares with voting rights, equity shares with differential voting rights. Now earlier when the Companies Act started, it had only one type of share, that is equity shares with voting rights. There was no second type. You must be knowing about the name of the company which is called Tata. Tata was the company जिन्होंने पहली बार equity shares with differential voting rights introduce किया। माने क्या? Normally अगर पहले टाइप के शेयर्स हो equity shares with voting right, तो सभी तरह के equity शेयर जो कंपनी इशू करते हैं उन सबको समान तरीके का वोटिंग अधिकार रहेगा। All the equity shares which are issued by the company will have same kind of voting rights. But if the company is issuing equity shares with differential voting right, every class of the equity shares which are issued by the company will have different voting rights, right? मान लो A क्लास के 100 रुपए के शेयर्स इशू किए, B क्लास के 10 रुपए के शेयर्स इशू किए, C क्लास के 1 रुपए का शेयर इशू किया है और D क्लास का 1000 रुपीस का शेयर इशू किया है। Now they are different shares and every share will have different kinds of voting right. So these are called as equity shares with differential voting right. कंपनी के इक्विटी शेयर्स एक ही है, 100 रुपीज पर शेयर, तो सब उसमें कोई क्लास है क्या अलग? नहीं, एक ही तरह के सारे इक्विटी शेयर्स है, तो सबको वोटिंग राइट भी एक जैसे ही होंगे। तो जब अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स, अलग अलग वैल्यू के शेयर्स, अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स हम बनाते हैं और अलग अलग शेयर्स को अलग अलग वोटिंग राइट देते हैं, दे आर कॉल्ड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। बट इफ द कंपनी हैज सिंगल फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड दे कैरी सेम काइंड ऑफ राइट, दे विल बी कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट। ये डिफरेंशिएशन आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एम आई ओके? सो इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ये वाला कंसेप्ट लेकर आए थे टाटा कंपनी। They bought this particular concept of equity shares with differential voting right. Earlier the Companies Act only talked about equity share with voting rights, right? Equity shares are also known as ordinary shares. इसे हम ordinary shares भी कहते हैं जनरली, क्योंकि नॉर्मली जब हम शेयर बोलते हैं, whenever we say मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, we did not mean that we are buying or targeting preference shares. जो भी एक नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है, मुझे शेयर खरीदना है, उसे प्रेफरेंस शेयर क्या आता है मालूम ही नहीं होता, वो बोलता है मुझे शेयर्स खरीदना है। एग्जैक्टली ऑर्डिनरी मार्केट में जब शेयर बोलते हैं, दैट टू बी रेफर्ड एज इक्विटी शेयर। जब भी हम शेयर ये वर्ड यूज करते हैं, व्हेनेवर वी यूज द वर्ड शेयर, इट हैज टू बी अंडरस्टूड एज इक्विटी शेयर। सो इसीलिए इसे ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है। द कंपनीज एक्ट डिफाइंस इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। इसीलिए मैंने पहले प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ाया, पहले प्रेफरेंस शेयर्स समझ जाओ, और जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो क्या है फिर? इक्विटी शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं? जिनको दो प्रेफरेंशियल राइट है।
all those shares who carry two preferential right in case of payment of dividend and in case of repayment of the capital will be called as preference shares, and those shares which are not preference shares are called as equity shares. वैसे ही वो अपन ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था. What is private company is defined, but what is public company? Public company is that company which is not a private company. ठीक उसी तरह से equity shares are those shares which are not preference shares. Preference shares are those shares which enjoy some preferential right for the payment of the dividend, preferential right for the repayment of the capital. The above definition reveals that the equity share do not enjoy any preference for dividend, क्योंकि सबका पेमेंट के बाद लास्ट में डिविडेंड किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को. उनसे पहले किसको प्रेफरेंस मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स को, राइट? एंड द इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. इसीलिए मैंने उनको क्या नाम दिया है? रेसिडुअल क्लेमेंट. क्या कहा? रेसिडुअल क्लेमेंट. कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड अप होने के बाद एसेट बेचने के बाद सबसे पहले हम क्या चुकाते हैं? बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल को रिपे करने के बाद हम क्या रिपे करते हैं? प्रेफरेंस कैपिटल. प्रेफरेंस कैपिटल पे करने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ बच जाता है, दैट वुड बी प्रोपोर्शनेटली रीपेड टू द इक्विटी कैपिटल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दे आर also called as the residual claimant. Equity shares are fundamental source of financing the business activities. किसी भी बिजनेस में फंडामेंटल या बेसिक 15 मिनट बोले थे मैंने, पौन घंटा नहीं बोला था. आई जस्ट सेड 15 minutes. Equity shares are fundamental source of financing a business activity. The very basic source of own capital in a joint stock company is equity shares. इसे फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंस कहा जाता है. किसी भी कंपनी में ओन कैपिटल, सबसे पहली बात तो हमारी समझ ये है कि ओन कैपिटल वो होता है जो खुद का होता है, और जो खुद का होता है वो परमानेंट होता है. हाँ या ना? राइट? जो खुद का होता है वो परमानेंट होता है. अपने कौन होते हैं? परमानेंट होते हैं. अपने कौन होते हैं? परमानेंट होते हैं. अपने परमानेंट होते कि नहीं होते हैं? राइट, अपने परमानेंट होते हैं. जब अपने परमानेंट होते हैं, ठीक उसी हिसाब से इक्विटी शेयर्स जो होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी का. इक्विटी कैपिटल क्या होता है कंपनी का? परमानेंट कैपिटल. परमानेंट कैपिटल होने की वजह से इसे फंडामेंटल और बहुत बेसिक सोर्स माना जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में. जॉइंट स्टॉक कंपनी में जब हम कैपिटल रेजिंग का काम करते हैं तो कैपिटल रेजिंग की शुरुआत से ही हम किससे स्टार्ट करेंगे? इक्विटी शेयर्स. पहले ओन्ड कैपिटल लाना पड़ेगा, फिर बोरोड कैपिटल मिलेगा. कंपनी में ओन्ड कैपिटल ही नहीं तो बोरोड कैपिटल कोई देता नहीं है. सबसे पहले आपको ओन कैपिटल खड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद जो है बोरोड कैपिटल आपको कोई देगा. राइट? इक्विटी शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी एंड बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप. प्रॉफिट में उनको प्रायोरिटी है क्या? प्रेफरेंस है क्या? नहीं. रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में कुछ है क्या? नहीं. पैसा उनका रिपे कर रहे क्या अपन? नहीं. पैसा अपने पास. प्रॉफिट देंगे कि नहीं देंगे, डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे, वो अपन ही सोच रहे. रिपेमेंट के लिए उनको प्रेफरेंस नहीं है, प्रॉफिट के लिए उनको प्रेफरेंस नहीं है. पैसा उनका अपने पास ही मिलेगा, तो देंगे नहीं देंगे वो भी कुछ पता, डिविडेंड देंगे नहीं देंगे वो भी पक्का नहीं. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी की सबसे ज्यादा रिस्क कौन उठा रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर. दे आर द अल्टीमेट रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी. दे आर द अल्टीमेट रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी. हाँ या ना? इसीलिए उन्हें ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी कहा जाता है. इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी. यस और नो? हाँ या ना? तो कंपनी के ट्रू ओनर कौन है? इक्विटी शेयर्स. After paying claims for all the investors, the remaining funds belong to the shareholders. So the equity shareholders are called as residual claimant of the income and the assets. Word underline करके रखो, residual claimant. बुक तो लाए होंगे सब, लिखो वहां पे residual claimant, underline करो. सुनते कि नहीं सुनते? कौन सुनेगा भाई? सुनना पड़ता है. करो अंडरलाइन, रेसिडुअल क्लेमेंट. अंडरलाइन करो, रेसिडुअल क्लेमेंट. अपने वजनदार बैग में से किताबें निकालो, निकालो अपने वजनदार के बैग में से. और कितनी वजनदार बैग लेके आए तू? तीनों एक में लेके आए क्या? कब मांगा मेरे को तू? ओ ऐसा है क्या? मेरे को भी आते हैं. बहुत वजनदार बैग होगा ना तुम्हारा? माट्रा की जैसे वजनदार बैग होना चाहिए. डोरा बैकपैक, टेक्स्ट बुक निकालो. निकाले? ओके. वाह 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 वाह, ताड़ा. लेक्चर चालू. एसपी का किताब निकाल रहा है, टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स की. वाह वाह, बहुत बहुत सही जा रहे हो बेटा, बहुत सही जा रहे हो. अपने बोझ भरे बैग में से किताब निकालो और क्या किताब निकालकर अंडरलाइन करो, रेसिडुअल क्लेमेंट.
रेसिडल क्लेमेंट, अंडरलाइन किया ना, अंडरलाइन कर लो, मेन पॉइंट अंडरलाइन करने चाहिए, फिर बाद में भूल जाओगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड उनका पक्का है क्या? नहीं, अंडरलाइन करो अंडरलाइन। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी, बेटा पेज नंबर बता दो, सॉरी शक्तिमान, पेज नंबर 17 करो। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड, करो अंडरलाइन करो, डू नॉट कैरी एनी फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब क्या है? डिविडेंड उन्हें पे किया जाएगा या नहीं पे किया जाएगा, दिस इज नॉट फिक्स्ड। व्हाई इज इट सो? बिकॉज इट इज declaration of the dividend is at the will of the directors. Board of directors will decide whether to declare or whether not to declare dividend. हनीशा, कहाँ अपना वजनदार बैग? उसमें से किताब निकालो, एसपी का निकाला क्या आपने? हाँ, तो अंडरलाइन करो, बाद में भूल जाते। Not to carry any fixed commitment of dividend, right? They are paid dividend at the rate recommended by the board of directors. अंडरलाइन करो अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, करो अंडरलाइन, रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कर लिया अंडरलाइन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करता है कि कितना डिविडेंड देना है, उनके रिकमेंडेशन के मुताबिक डिविडेंड ये जो है वो पे किया जाएगा। हाय आना भाई साहब, यस और नो? ए पिल्लू लक्ष्य दे इकडे। डिविडेंड विल बी पेड एट अ रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेबल, बरोबर है? क्या पॉइंट है फिर यहाँ पे? अंडरलाइन करो, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, अंडरलाइन करो, भूल जाओगे बाद में। नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, अंडरलाइन, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। अगर लॉस हुआ तो डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं। लॉस हुआ तो डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं। अभी अंडरलाइन क्यों करा रहा हूं? क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, भूल जाओगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए अंडरलाइन करो, ठीक है? नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली इफ देयर इज लेस प्रॉफिट लेसर डिविडेंड विल बी पेड, करो अंडरलाइन, लेस प्रॉफिट लेसर डिविडेंड, करो अंडरलाइन, करो जल्दी अंडरलाइन, चलो करो सब लोग अंडरलाइन करो। लेस प्रॉफिट, पेंसिल, श्रेया बैकपैक खोलो, निकालो पेंसिल, डोरा जल्दी बैकपैक काढ़ो, पेंसिल निकालो। लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड विल बी पेड। ए डोरेमोन, चलो नेक्स्ट पॉइंट। थस द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी और इक्विटी शेयर इज टाइड अप विद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी। उनका फॉर्च्यून किसके साथ है? अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी। फिर क्या अंडरलाइन करेंगे? नहीं कुछ नहीं करेंगे, जान दो आप। थस द फॉर्च्यून ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज टाइड विद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल they enjoy great financial rewards and if the company fails the risk mainly lies on them। अगर कंपनी अच्छा करती है तो शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न मिलते हैं, और अगर कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म करती तो ऐसे केस में वो नुकसान खाते हैं। कौन? इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट? इट इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल। अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, करो अंडरलाइन। वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल, करो अंडरलाइन, करें डोरा। वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल, वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल, मेन पॉइंट अंडरलाइन करो, भूलो मत। द ओनर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स आर द रियल रिस्क बेयरर्स। तो असली रिस्क बेयरर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। तूने एक और नाम क्या है? रियल रिस्क बेयरर्स, करो अंडरलाइन, रियल रिस्क बेयरर्स, अंडरलाइन करो, रियल रिस्क बेयरर्स, कर लिए क्या अंडरलाइन? हाँ। However, the equity shareholders participate in the management of their company. How? With the help of annual general meeting.
The decisions are no doubtly taken by the board of directors in the board meeting, but the finalization of the decision and implementation of decision can be done only after the passing of the decisions in the annual general meeting. And who has the voting power at the annual general meeting? The equity shareholders. The equity shareholders enjoy the general voting rights which are to be used or utilized at the annual general meeting for passing any of the decisions of the board. The board of directors undoubtedly take the decision. जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है डिविडेंड पेमेंट को लेकर कोई डिविडेंड का ही बात करता हूं यहां पर, लेट्स से 10% डिविडेंड इज द रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. 10% डिविडेंड इज व्हाट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. रिकमेंडेशन देने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन डिविडेंड पेमेंट का पासिंग डिसीजन एनुअल जनरल मीटिंग में ही होता है. कहां होता है? एनुअल जनरल मीटिंग. सिर्फ फर्क यहां पर क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स खुद से नहीं बोल सकते कि लेट्स पे डिविडेंड ऑफ 10%. रिकमेंडेशन कहां से आना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द इक्विटी शेयर होल्डर्स विल एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग. इक्विटी शेयर होल्डर रिकमेंडेड रेट ऑफ डिविडेंड से कम का डिविडेंड पास कर सकते हैं, उसके बराबर का कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा का नहीं कर सकते. समझ में आ रही बात? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10% डिविडेंड रिकमेंड किया है, तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर सब मेंबर्स खुद से बोल सकते हैं नहीं हम 8% डिविडेंड ही लेंगे, कंपनी के पास 2% थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट रहने दो, राइट, 9% ही रहने दो, ऐसा बोल सकते हैं. लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है कि 10% डिविडेंड डिक्लेयर करना है, रिकमेंड किया है. अब एनुअल जनरल मीटिंग मेंबर बोल रहे हम मालिक है, हम हमारी सब्सिडी करेंगे, नहीं 10% नहीं 15% डिविडेंड दो और 15% पास करो. कर सकते हैं क्या? नहीं. रिकमेंडेशन के बराबर या कम का आप पासिंग करा सकते हो एनुअल जनरल मीटिंग में, बट नन ऑफ द डिसीजन कैन सरपास द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड मीटिंग. 10% से ज्यादा नहीं हो सकता. 10% है, उससे कम का आप पासिंग करा सकते हो, लेकिन 10% रिकमेंडेड रेट से ज्यादा आप पास नहीं करवा सकते, right? However, the equity share participate in the management of the company. How do they participate? With the help of annual general meeting. They are invited to the annual general meeting. They are allowed to vote on all the matters discussed at the annual general meeting. They elect the representative to manage the company, which are called as the board of directors. Equity shareholders are thus the real owner of the company. Underline real owner. Important point. करो underline. Real owner. Highlight करो खाली. रियल ओनर बोलो मत, इंपॉर्टेंट पॉइंट. रियल ओनर. इज इट ओके? इतने अंडरलाइन खेलने की वजह यह है क्योंकि जितनी चीजें मैंने आपको अंडरलाइन की उसको पढ़ो, एक बार पढ़ो. अरे खुद का खुद पढ़ो, गांव को मत सुना, गांव को मत सुना, खुद का खुद पढ़ो. जितनी चीजें मैंने अंडरलाइन करवाई है वो पढ़ो. जितनी भी चीजें मैंने अंडरलाइन करवाई है उतनी चीजें पढ़ो. जितनी चीजें अंडरलाइन करवाई है उतनी पूरी पढ़ो. रीड वंस ट्वाइस, एक बार दो बार पढ़ो. बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करें ना सब जन. टेक्स्ट बुक लाया कि नहीं लाया? कहाँ है शेट्टी टेक्स्ट बुक तेरी? हाँ वो शर्मा तेरी किधर है? हाँ कौन नहीं लाया टेक्स्ट बुक? इसने नहीं लाया तो कौन सी बुक लेकर? हाँ क्या दो, क्या था? ठहरो में जरा. हाँ जा जा भाई जा 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 धो के आ जल्दी. चुप है. बोला आंख धो के आओ क्या? मेरे को सुना ही नहीं दिया. चुप है गंदे. पढ़ेगा, पढ़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेगा सब लोग. पढ़ लिया क्या? पढ़ेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा 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 चलो बताओ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या था, अंडरलाइन क्या क्या किया बताओ. सबसे पहला क्या है? रेसिडुअल क्लेमेंट. दूसरा क्या है? अरे एक सेकंड, एक सेकंड. किरण पढ़ो, सब पढ़ो. हाँ हाँ एक सेकंड.
ए टिकटॉक गँग एक एक आगे बढ़ो चल चले काकडे पाऊस यायलाय चल पुढे चल जल्दी जल्दी आ चल उठ वहां से उठ भाले उठ ये टेबल पे खड़े होते चल खड़े हो बैठ मत बैठने क्लास में एक बार खड़े हो टेबल पे नहीं बैठने जा जा फिर घर पे जा जल्दी खड़े हो बातें क्यों कर टेक्स्ट बुक किधर है तेरी हाँ ए टिकटॉक काकड़े आ गया चल जल्दी जल्दी उठ रेवनवार पुड़ी रेवनवार आ गया जल्दी चल बेटा बहुत तरक्की कर रहे हो तुम बहुत पीछे पीछे जा रहे हो जल्दी आ पटकन आगे चल उठ काकड़े वहां से काकड़े आ गया जल्दी जल्दी आ गया लवकर टिकटॉकर्स हाँ हो गया हाँ पढ़ो पढ़ो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ो ए इंपॉर्टेंट पॉइंट हाँ 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 हम्म 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 तो भाई साहब ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये सारे अंडरलाइन किए हुए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करवाने की वजह ये है कि दिस फिनिशेस आर डिस्कशन ऑन फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देयर इज नथिंग न्यू टू बी डिस्कस इन फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन किए ना सबने हाँ क्योंकि अब जो नीचे फीचर्स देखेंगे हम जानबूझ के चुप मजाक करके अंडरलाइन तो करवाया है लेकिन अंडरलाइन किए गए पॉइंट्स में एक बात समझने जैसी है कि फीचर्स ऑलरेडी आपके सब कवर हो चुके अब इन अंडरलाइन किए गए पॉइंट्स में से कोई पॉइंट किसी को नहीं समझा तो वो पूछो मुझे ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको नहीं समझा है इज देयर एनी पॉइंट विच यू कुड नॉट अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आस्क मी दैट जो अंडरलाइन किया उसमें से कोई पॉइंट नहीं समझ में आया क्या जो अंडरलाइन किए गए पॉइंट है उसमें से कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पहले वो पूछो इज देयर एनी पॉइंट एनी क्वेश्चन यू विश टू आस्क हाँ बोलो ऐसा करो हाथ बाद में मेरे को बोलते मैं हाथ कर रही तुम मेरी तरफ देख रही नहीं कहीं को देखना हम तुम्हारी तरफ वाह रे वाह हाँ वाह 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 रेसिड्यूअल क्लेमेंट यानी क्या है मतलब ये हो गई पूरी रामायण पुराण हो गई पूरी सब खत्म हो गई राम कौन सीता के तो बोले पिताजी ने आजोबा पंजोबा खाजोबा हट बे है क्या रे प्रेफरेंशियल क्या रहते प्रेफरेंशियल्स हाँ प्रेफरेंशियल्स क्या रहते किसके लिए देते प्रेफरेंशियल्स बोलो बोलो ना बोलो बोलो जल्दी अरे बोलो ना प्रेफरेंस शेयर्स कैसे रहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिसमें दो प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं दो प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं सेकंड प्रेफरेंशियल राइट क्या है प्रेफरेंस राइट फॉर द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल कंपनी अगर वाइंडिंग अप में जाती है लिक्विडेशन में जाती है सुनो पाटिल कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाती है वाइंडिंग अप में जाती है तो वाइंडिंग अप में जाने के बाद सबसे पहले पेमेंट किसका करते हैं अपन असेट बेचने का तू पाटिल कह रहा है चुप ना चुप रहे मार रहा हाँ दूसरे का मजाक किया तो हंसते आता आज खुद को मजाक की वाह रे वाह मेरी बिल्ली मैं कुछ में हूं वाह रे वाह दूसरे का मजाक उड़ के लेके खुद का चलो चलो ध्यान दो कंपनी वाइंडिंग अप में जाने के बाद कंपनी के एसेट बेच दिए बेचने के बाद सबसे पहले कौन सा कैपिटल रिपे करते हैं सबसे पहले किसका अच्छा एक मिनट कितने तरह के कैपिटल के दो मेजर सोर्सेस कौन से 2 मिनट कोई बीच में मत बोलो कैपिटल के मेजर 2 सोर्सेस कौन से हैं ओन्ड एंड बोरोड बड़ा ठीक है तो ओन्ड कौन सा है जो खुद का है बोरोड कौन सा है
जो हम उधार लेके आते, जो हम उधार लेके आते। अब कंपनी वाइंड अप में गई, वाइंडिंग अप करने के बाद कंपनी के एसेट बेच दिए। एसेट बेचने के बाद सबसे पहले पैसा किसका देंगे रिटर्न? बोरोड का। बोरोड के बाद किसको देंगे? प्रेफरेंस को। और सबसे लास्ट किसको देंगे फिर? वो भी कब देंगे? अगर पैसे बचे तो, नहीं बचे तो नहीं देंगे। तो मतलब बचा कुचा किसको मिला? इक्विटी को। तो बचा कुचा मतलब रेसिडुअल होता है। बचा कुचा मतलब क्या होता है? रेसिडुअल। समझे क्या? बचा कुचा इज कॉल्ड एज रेसिडुअल, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेसिडुअल क्लेमेंट बोलते हैं। क्योंकि कंपनी अगर वाइंडिंग अप में चले जाती है, वाइंडिंग अप में जाने के बाद, वाइंडिंग अप में जाने के बाद उसके बाद में जो कुछ भी बचा कुचा होगा, दैट बचा कुचा जो उनको मिलता है, पहले बोरोड कैपिटल जाएगा। अगर बोरोड कैपिटल चला गया, बोरोड कैपिटल जाने के बाद अगर पैसे नहीं बचे तो फिर किसको मिलेंगे? क्या? नहीं, प्रेफरेंस कैपिटल को भी नहीं मिलेगा, इक्विटी कैपिटल को भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बोरोड देने के बाद, प्रेफरेंस देने के बाद अगर कुछ पैसे बच जाते तो उसमें से रिपेमेंट किसका होता है? तो इक्विटी कैपिटल का होता है। समझ में आया? समझा रेसिडुअल क्लेमेंट? हाँ, अब हंसो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन पॉइंट में नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। रिया क्वेश्चन है कोई? नहीं ना? ठीक, सबको समझ में? हाँ पूछो भाई, किरण क्या है? हाँ क्या है? खोले, कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? तुम हंसने के अलावा कुछ कर लो, कोई पूछो, कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ गिरी, कोई क्वेश्चन है क्या बॉयज? चलो ओके। इफ यू हैव अंडरस्टूड द अंडरलाइन क्वेश्चन, अंडरलाइन पॉइंट्स, देन इसका मतलब आपको फीचर सारे समझ में आ गए। किसी कोई पॉइंट पे डाउट है? किसी कोई पॉइंट पे डाउट है क्या? नहीं। अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट नहीं, इसका मतलब सारे फीचर्स क्लियर है, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो पहला पॉइंट, परमानेंट कैपिटल। हु आर द ट्रू ओनर्स? इक्विटी शेयर होल्डर। पॉइंट का अंडरलाइन क्या? पहले अंडरलाइन क्या? फर्स्ट, एकदम फर्स्ट शुरुआत में क्या अंडरलाइन किया अपन ने? रियल ओनर्स कहां पे अंडरलाइन किया अपन ने? एकदम लास्ट। कंपनी का रियल ओनर कौन है? मतलब जिसमें कंपनी का पैसा रहेगा वो कौन है? रियल ओनर। तो रियल ओनर का पैसा कंपनी में थोड़े वक्त के लिए लेगा या परमानेंट रहेगा? आई एम द रियल ओनर ऑफ द बंगलो, राइट? सो रियल ओनर मतलब क्या है? परमानेंट कैपिटल, बरोबर? रियल ओनर मतलब जो परमानेंट रहेगा, फॉरएवर रहेगा। जो परमानेंट और फॉरएवर, ए भाई तू उस वायर को छेड़ मत, पहले बोल रहा, वरना मैं तेरे को छेड़ना शुरू करूंगा। तो रियल, और तेरे को हाथ मत लगा बोला ना मैं, डोंट टच, डोंट टच, ओनली सी। हाँ देखो मगर प्यार से। हाँ, परमानेंट कैपिटल। रियल ओनर्स कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि उनका पैसा जो है कंपनी में फॉरएवर रहता है। कब तक रहता है भाई? फॉरएवर। जो फॉरएवर परमानेंट जब पैसा अगर कंपनी में रहेगा, दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज परमानेंट कैपिटल। दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज परमानेंट कैपिटल। यस और नो? दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट कैपिटल। हेंस इक्विटी कैपिटल इज परमानेंट कैपिटल। माने वो क्या है? रिडीमेबल। रिडीमेबल, रिडीमेबल। अरे सुनो ना यार मेरे किरण, कोई सुनता नहीं यार मेरी, सब सुनाते रहते मेरे को। रिडीमेबल, हाँ रिडीमेबल, बड़े ठीक है जाते। नॉन रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल जिसको हमें रीपे करने की जरूरत नहीं है, जो जन्म जन्म तक साथ निभाएगा, वो कौन है? नॉन रिडीमेबल। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इररिडीमेबल शेयर्स। The amount received from the equity shares is not refundable by the company during its lifetime. Equity shares become refundable only in the event of winding up of the company or the company decides to buy back the shares. Now there is a new concept, buy back. Give me back, buy back. जब कंपनी दिए हुए शेयर्स को वापस खरीदती है, कंपनी ने कोई शेयर्स इश्यू किए गए, इश्यू किए शेयर्स को जब वो बाय बैक करती है, वापस से खरीदते हैं। लेट्स से कंपनी ने कोई शेयर्स माट्रा को बेचे, कातरेला को बेचे, खुपसे को बेचे, कापसे को बेचे, तो जब बेचते हैं तो बेचने के बाद इनसे जब शेयर्स कंपनी वापस खरीदती है, दैट इज कॉल्ड एज
बाय बॅक ऑफ शेयर्स. कुठे रे सकुन्या, ए नवरदेव, हाँ कैसे लगीन करेंगे तेरा फिर अपन. तो दैट इज कॉल्ड एज बाय बैक ऑफ शेयर्स. इश्यू किए गए शेयर्स को जब कंपनी वापस खरीदती है तो ऐसे टर्म को हम कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स. अब बात समझती बात है कि कंपनी अगर बाय बैक कर रहा है, इन तीनों को, हमारे गांधी जी के तीन लोगों को अगर शेयर्स बेचे हैं तो इनसे कंपनी शेयर्स वापस खरीद रही है. ये क्या फ्री में देने वाले हैं क्या? नहीं, बदले में क्या लेंगे? पैसा. अगर कंपनी बायबैक करता है तो ही रीपेमेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल होता है, लेकिन बायबैक करने का उनको डिसीजन लेना पड़ेगा. जब तक बायबैक का डिसीजन नहीं होता तब तक इनकी शेयर्स कंपनी नहीं खरीदती. कंपनी ने बहुत पैसा कमाया, कंपनी को लगता किसका पैसा नहीं चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर का नहीं चाहिए, किसी का नहीं चाहिए. तो ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं, अपने पास इतना सरप्लस प्रॉफिट है, अपने को किसी इन्वेस्टर का पैसा लेने की जरूरत ही नहीं है. तो कंपनी प्रस्ताव रखती है बायबैक ऑफ शेयर्स, उनको एक ऑफर देती है कि इस दाम पे मैं आपने जो हमारी कंपनी के शेयर्स बेचे हैं वो खरीद लेंगे हम वापस, लेकिन वो शेयर होल्डर का अधिकार रहेगा वेदर टू सेल बैक द शेयर्स और नॉट टू शेयर्स. नथिंग कैन बी कंपल्सरी कि आपको देना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट वोंट बी कंपल्सरी ऑन द शेयर होल्डर टू रिटर्न बैक द शेयर्स इन द केस ऑफ बायबैक. बायबैक का डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले सकते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में पास हो सकता है, प्रस्ताव रखा जाएगा, लेकिन इट विल बी वॉलंटरी वेदर टू सेल बैक द शेयर्स टू द कंपनी और नॉट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज कॉल्ड एज बायबैक, जब कंपनी शेयर्स बेचती है, जब उसे वापस खरीदती है, दैट इज कॉल्ड एज बायबैक ऑफ शेयर. इसके ऊपर ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा क्योंकि कहीं पर भी सिलेबस में आपको बायबैक के बारे में कुछ ज्यादा है नहीं. इज इट ओके? राइट इश्यू के बारे में, बोनस इश्यू के बारे में बोला क्योंकि वो आगे चैप्टर में है, बायबैक कहीं पर भी अपने को नहीं है. सिर्फ सिंपल याद रखो, इश्यू किए गए शेयर्स को जब कंपनी वापस खरीदने का प्रस्ताव रखती है, ऑफर रखती है, दैट इज कॉल्ड एज बायबैक ऑफ शेयर्स. द इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल. पहला पॉइंट समझ में आया? देखो अंडरलाइन में ही सब चल रहा है. सेकंड पॉइंट, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. देखो वहां पे किरण बताओ, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड में कहां अंडरलाइन किया अपन ने? फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं है, मतलब उनका डिविडेंड फिक्स्ड है क्या? नहीं. डिविडेंड रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. पास कौन कहां होता है? एनुअल जनरल मीटिंग. रिकमेंडेशन से ज्यादा पास हो सकता है क्या? नहीं. रिकमेंडेशन उतना है, रिकमेंडेशन से कम का, लेकिन रिकमेंडेशन करने का अधिकार किसका है? आया क्या अंडरलाइन में? मेन पॉइंट में समझ में आया? नथिंग, आई हैव टू डू नथिंग इन द एंटायर फीचर्स, जस्ट रीडिंग इज टू बी डन. इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव एनी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. विच शेयर्स हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड? पाटिल बोलो. Preference share. The rate of dividend depends upon the amount of profit earned by the company. It will depend upon the profit of the company. If the company is earning profit, dividends will be declared to them. और company का profit नहीं है तो dividend कहाँ से declare करेंगे भाई साहब? Right? If the company earns more profit, dividend is paid at a higher rate. On the other hand, if there is insufficient profit or loss, board of directors may postpone the payment of the dividend. That means there will be no recommendation for the payment of dividend. The equity shareholders cannot compel. क्या बोले वहां पे? कैनॉट कंपेल टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड. वो एनुअल जनरल मीटिंग में खुद से एक रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते कि वी ऑल रिकमेंडेड टू पे डिविडेंड एट ₹10 पर शेयर. दे कैन नॉट. रिकमेंडेशन कहां से आना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, बिकॉज इट इज आउट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग. इट इज ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड मीटिंग. वट एवर पॉइंट्स हैव अथॉरिटी इन द बोर्ड मीटिंग हैव टू बी पास्ड इन द बोर्ड मीटिंग इटसेल्फ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मैंने कंपनी मीटिंग में सिखाया था. The income of the equity shares is uncertain and irregular. क्योंकि certainty है क्या? नहीं है. Preference dividend is fixed, तो वहां पे certainty है और regular भी है. जितने साल के preference से उतना fixed dividend मिलेगा. यहाँ पे कोई regularity है क्या? यहाँ पे कोई certainty है क्या? नहीं है. The equity shares get dividend at a fluctuating rate as is recommended by the board of directors year after year. Are we okay? Are we okay with the point? Third point, rights. राइट टू वोट. हु इज द ट्रू ओनर? तो एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग का अधिकार किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर. तो राइट टू वोट, कंपनी के सारे मैटर्स के ऊपर एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर हर शेयर होल्डर को वोटिंग करने का अधिकार होता है. हमारे यहां डेमोक्रेटिक वोटिंग नहीं होती जॉइंट स्टॉक कंपनी में. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोटिंग, वोटिंग बाय पोल एंड वोटिंग बाय डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक राइट. डेमोक्रेटिक राइट से वोटिंग मतलब 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट. हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक वोटिंग पैटर्न, यानी एक व्यक्ति एक ही वोट कर सकता है इलेक्शन में. राइट? वो बात अलग है. हमारे यहाँ पे डुप्लीकेट वोटिंग भी होती, अंदर जाके वोटिंग करके बाहर आके लेके केरोसिन विरोसिन लगा के वो नेल रिमूवल रहता है. क्या रहता है वो, क्या बोल रहे हो? नेल रिमूवर, नेल नहीं, सॉरी, नेल पॉलिश रिमूवर.
नहीं पता बोला नेल रिमूवर लगाया कि पूरा नेल रिमूव हो गया। कैसे? ऐसे क्या? नेल पॉलिश रिमूवर। तो वो नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, उस नेल पॉलिश रिमूवर से वो फटाफट, मैं किया था एक बार वोटिंग लोकसभा में, डबल लोकसभा में जाने का, वोट करने का, बाहर आने का फटाफट फटाफट बंदोबस्त, अरे गळाचा टाइट झाला लाडका आमचा बॉस, है ना, बाहर आके फटाफट फटाफट उसको नेल रिमूवर से रिमूव करने का, अंदर वापस जाने का, वोटिंग करके आने का। क्योंकि मेरे आधार कार्ड पे तो शायद मेरे, नहीं जान दो, और तुम शुरू हो जाएंगे, छोड़ो। मेरे आधार कार्ड पे जो फोटो थी उस वक्त, पुराने नहीं, इलेक्शन कार्ड पे मेरे हिसाब से जो फोटो थी वो शायद 2004 की है। मैं बताऊंगा तुमको बाद में। 2004 की मेरे इलेक्शन, 2004 में, पता है तुम पैदा हुए थे कि शायद? पैदा हुए थे, नहीं हुए थे? मैं 9वीं कक्षा में था। आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में कौन 22 साल का होता है भाई साहब? हाँ हाँ, 2004 का मेरे इलेक्शन कार्ड पे फोटो था, तो वो समझ में नहीं आया किसी को। अरे भाई ओ, अरे 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 रुको, शेंगदाने वाली, शेंगदाने वाली। अरे भाई तुम सोच रहे होंगे कि 2004 में इलेक्शन कार्ड कैसा है, मैं वो नहीं बोला। मेरे इलेक्शन कार्ड पे 2004 की फोटो है। तो उस वजह से किसी को समझ में आया ये चेहरा किसका है, तो फटाफट जाकर डबल वोटिंग करके आया मैं, फट जाकर। तो डबल वोटिंग किया था मैंने। तो डेमोक्रेटिक, सुना, मुद्दे पे आओ प्लीज प्लीज, टाइम पास ना हो, पूरे खत्म करने फीचर्स में को आज, प्लीज प्लीज। डेमोक्रेटिक वोटिंग में 1 पर्सन विल गिव अ 1 वोट, ये डेमोक्रेटिक का पैटर्न होता है। जैसे कि यही वोटिंग पैटर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप मेंबर हो, मैंने सिखाया था 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव। डजंट मेक अ डिफरेंस कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेरे पास 100 शेयर्स है, कातरेला के पास 1000 है, माट्रा के पास 10,000 है और खुबसी के पास 20,000 है। डजंट मेक अ डिफरेंस, डजंट मेक अ डिफरेंस, हाँ, डजंट मेक अ डिफरेंस, डजंट मेक अ डिफरेंस। क्योंकि एक मेंबर के पास एक ही वोट है, खुब से हो, काप से हो, माट्रा हो, कातरेला हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट, 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट। लेकिन जब हम कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी के अंदर डेमोक्रेटिक वोटिंग नहीं होता। कंपनी में डेमोक्रेटिक वोटिंग नहीं होता। कंपनी में वोटिंग अधिकार मिलते हैं एज पर द शेयर होल्डिंग। अगर आपका 51% शेयर है तो 51% शेयर होगा तो आपकी मैक्सिमम वोटिंग रहेगी। 100% वोटिंग तो वाह क्या ही बात है, 100% वोटिंग तो क्या ही बात है। लेकिन अगर 50 से कम आए तो फिर वो मेजोरिटी नहीं बनती, वो कंट्रोल नहीं रहता क्या? नहीं मिलता, वो कभी नहीं मिलने वाला, चिंता मत करो। तो भाई राइट टू वोट is the basic right which is given to every equity shareholder. Is it okay? Second point, right to share in the profit. What is the second point we have? Right to share in the profit. मैंने बताया था डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद, रिकमेंड होने के बाद, एनुअल जनरल मीटिंग में पास होने के बाद डिविडेंड इज कंसिडर्ड टू बी डिक्लेयर्ड। वंस इट इज डिक्लेयर्ड यू कैन नॉट से हमने प्रैंक किया था, नहीं हो सकता प्रैंक। Once it is declared, once it is passed in the annual general meeting, it has to be compulsorily paid. It has to be compulsory to be paid. मतलब एक बार डिविडेंड रिकमेंड हो गया, एक बार डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में पास हो गया, पास होने के बाद इट बिकम्स द राइट ऑफ एवरी इक्विटी शेयर होल्डर टू क्लेम द डिविडेंड। बाद में प्रैंक विंग कुछ नहीं चलता। नेक्स्ट, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स। हु इज द ट्रू ओनर? इक्विटी शेयर होल्डर। तो जो मालिक है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का अधिकार होता है, राइट? सो दे हैव राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं ऐसे कंपनी की जो एक पब्लिक कंपनी है, जो एक पब्लिक कंपनी है, you also have the right to transfer the shares to any other person. But if you have bought the shares of a private company, do you think this right will be allowed? No. Only first 3 rights will be allowed if the shares are of a private company. But if the shares are of a public company, then only
4 rights will be allowed: right to vote, right to share in profit, right to inspect books, right to transfer the shares. Are we okay and fine? Right? Equity shareholders enjoy certain voting rights. It is the basic right of equity shareholders through which they elect the directors, alter the memorandum of association, etc. Right to share in the profit. जैसे हमने देखा, MOA gives the power to the company and MOA can be altered only in the annual general meeting by passing a special resolution which contains voting right of more than 75%. Right to share in profit. It is important right of the equity shareholders. They have right to share in profit when distributed as dividend. If the company is successful and makes handsome profit, they have advantage of getting large dividend. Right to inspect the books. Equity shareholders have right to inspect the statutory books of their companies. Next point, right to transfer the shares. Equity shareholders enjoy the right to transfer the shares as per the procedure laid down in the articles of association. Rules and bylaws किसमें होते हैं? Articles of association. तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की क्या प्रोसीजर होती है वो अगले वाले चैप्टर में बताऊंगा मैं. तो उस प्रोसीजर के मुताबिक एओए में जो प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर के मुताबिक ही हम जो है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करेंगे. अभी ओके एंड फाइन? अभी ओके एंड फाइन? क्लियर है यहां तक? दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल कंटिन्यू विद टुमारो. थैंक यू सो मच.